All right. Okay. Uh, so let us quickly understand what did we all learn about the things. We learned about introduction. We learned about testing principles, guys. You remember we learned about somewhere around seven testing principles. And I will not waste time and ask everybody. I'm going to quickly tell myself. I'll remind you people that what were the seven testing principles that we studied. Early testing, it may not be in the same order. All right, so exhaustive testing is not possible. Early testing, we need to start testing as early as possible. Defect clustering, pesticides, paradox, um, absence of error fallacy, and what else? Five is there, right? So, and what else? What else was there? Exhaustive testing is not possible. Early testing, defect clustering, pesticide paradox, absence of error fallacy, and testing is context dependent. Yes, yes, testing is context dependent. Yes. Then we study the skills for testing. So majorly the skills for testing is to understand and you need to know a little bit of analytical skills, logical skills, little bit of, and then you need to have a good communication. That is a very key thing for being a good tester. All right, we studied SDLC. So SDLC consists of requirements, planning, analysis, then development, testing, deployment, and support and maintenance. And then we also studied STLC. STLC consists of what? STLC consists of analysis and planning in the first phase, requirement analysis, and then the test plan, then test case design, then test case execution, and then the defect management, and then the test closure report. All right. Then we studied types of software testing. So we studied manual and automation. In manual, we studied functional, non-functional. Before that, we studied white box, black box, and gray box. In black box, we studied functional, non-functional. In functional, we studied unit testing, integration testing, system testing, and in non-functional, we studied performance testing, load testing, stress testing, usability testing, compatibility testing. Correct, guys? And then we were there were few other types of testing that we thought we are going to study today, so we are going to cover that. Did I miss anything? Did I cover everything that we studied for all 2 days, guys? Did I miss anything? No, right. I did not miss anything. And I hope you also have not missed anything and you have all covered. Thank you. And you can just go. We have a very good note. So in case you have not yet gone to the store and purchased it, do go and get your notes and the recordings purchased from there. That's a store. The link I've already shared. You just need to go there and click on buy, and it's available for an amount, and then you just have to purchase, wherein you can also download your certificate once you have completed the 10 days course. So you can get there the notes, the recordings, the interview questions, and this one and your certificate after the course is completed. All right, so you can go there and do that. So the cost for uh, for uh, for the certification for the store is 599, wherein you can get all these threes. Okay, all those things that I have just spoken about. Okay, very good. All right, all covered. Yes, thank you. Thank you very much. Now I'm also going to share one more screen that we had. This one, you remember? You remember we had studied here till automation testing, and then I said that we are going to cover these all things today: smoke testing, sanity, regression, UAT, and exploratory and ad hoc testing. Let us quickly start everything today. So smoke testing, guys. So I have these are all our notes. Wherein when I complete our class, I just put them into the store, so you can just go and read it, and it is so simple that you read once and the concept is clear. All right. So now I move into the smoke testing, a very important type of a testing, very important, not a big testing, I would say, but an important testing. All right. So what does the word smoke say? Smoke word खुद अपने आप में क्या क्या बोलता है? Smoke is nothing but what it is, a
It's a smoke, it's a kind of a fire, it's a kind of a smoke that comes out, right? So what is the first thing? Suppose if you are operating an electronic system or an electrical system, आप कोई electrical system और electronic system यूज कर रहे हैं और अचानक उसमें से धुआं आने लग गया, हम सबसे पहले क्या करते हैं? what do we do? what do we do, बताओ? Can anybody type? If you see a smoke coming out of any appliances in your day to day life, what do you do? Switch that off. Perfect. We switch that off. Okay, okay. We switch off the power supply. Very nice. Yes. Why do we switch off the power supply? Because we don't want the other things to be affected due to that. है कि नहीं? हम नहीं चाहते हैं कि अगर कहीं धुआं लगा है तो कहीं पूरे घर में ही ना आग लग जाए। इसकी पॉसिबिलिटी है कि कहीं और चीजें वायर्स में ना पकड़ ले, कहीं किसी को करंट ना लग जाए। तो बेस्ट तरीका क्या है कि सब कुछ स्विच ऑफ कर दो, isn't it? So in software testing, guys, when we say a smoke testing, so what happens is, जब आपके पास ना, जब आपको बिल्ड मिल जाता है, ठीक है, जब आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रेडी है, यू रिमेम्बर वी स्पोक अबाउट बिल्ड डिप्लॉयमेंट। जब लाइव में होता है उसके पहले हमारे पास टेस्टिंग का खुद का एक बिल्ड आता है, ठीक है, हमारे पास एक टेस्टिंग का खुद का बिल्ड आता है। तो जब वो बिल्ड हमारे पास आता है ना, तो हम क्या करते हैं कि वो बिल्ड, वो जो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, जैसे IRCTC co.in है, तो हमारे पास जब टेस्टिंग के लिए आएगा तो हो सकता है उसका नाम क्या रहेगा, IRCTC test.co.in, ठीक है। तो जब हमारे पास टेस्ट करने के लिए आता है ना, तो हम सबसे पहले एकदम घुस नहीं जाते हैं अपने टेस्ट केस निकाल के टेस्टिंग करने में। हम क्या करते हैं ना, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ना इम्पोर्टेंट लिंक पे क्लिक कर लेते हैं, फटाक से एक दिन में या आधे दिन में ना, एक इम्पोर्टेंट लिंक पे क्लिक कर लेते हैं कि अच्छा ये खुल रहा है, ये खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, ये ओपन हो रहा है, कहीं कुछ बुक टिकट पे अचानक से क्लिक किए और दिख दिया पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। हाँ, मैं क्या बोलूंगी कि मैं ये बिल्ड एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी, मैंने बंद कर दी टेस्टिंग। जैसे हम सारे अप्लायंसेस बंद करते, मैं बोलूंगी कि the build has failed the smoke test। मैं क्या बोलूंगी? The build has failed the smoke test and I cannot proceed the testing further। मतलब ऐसे build की मुझे जरूरत ही नहीं है। I cannot go ahead and do the testing because इसमें जो बेसिक है, जो मेन चीज है ना, वही काम नहीं कर रहा है। तो I cannot proceed this further, so the testing has been stopped। ठीक है। हम जब टेस्ट प्लान क्रिएट करते हैं ना, जब मैंने एक टेस्ट प्लान का बताया था, अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम एक टेस्ट प्लान का पूरा पूरा एंड टू एंड कंटेंट देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या रहता है। तो उसमें हम लिखते हैं एंट्री क्राइटेरिया में, ठीक है, कि हम एंट्री क्राइटेरिया टेस्टिंग की तभी स्टार्ट करेंगे जब स्मोक टेस्ट पास हुआ है। ठीक है। सो स्मोक टेस्ट इज व्हाट, टू 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 एंश्योर, मैंने बोला दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू एंश्योर दैट द बिल्ड इज एक्सेप्टेबल फॉर टेस्टिंग। मतलब तुमने जो हमें बिल्ड दिया है, जो टेस्टिंग टीम मुझे बिल्ड दे रही है, इज दैट एक्सेप्टेबल फॉर मी टू गो अहेड एंड स्टार्ट माय टेस्टिंग। ठीक है। एक टेस्टिंग एक्टिविटी के पहले ग्रीन सिग्नल है ये, कि ये स्मोक टेस्ट हमको ग्रीन सिग्नल देता है कि मैं टेस्ट अपना प्रोसीड करूं या ना करूं। दिस इज कॉल्ड अ smoke testing। ठीक है। Smoke testing comes into the picture at the time of receiving a build software from the development team। The purpose of smoke testing is to determine, see guys, the purpose of smoke testing is to determine whether the build of the software, whether the build software is testable, stop the testing। ठीक है। और इसमें और डिटेल्स लिखा है, why do we, wow, voice is breaking, is it for everybody? Good evening Sonam, is it for everybody that my voice is breaking, guys? In that case I can rejoin it, or if it is only there for a couple of people, then I think am I clearly audible? I'm not clearly audible. If not, then I would want to rejoin it. Okay, yes, now it is fine. Okay, thank you. Yes,
Yes, ma'am, you are audible. Okay, so people, just a request. So anyone who is not able to hear me, I would suggest just try to check your connection. And still, if you have a problem, do let me know. If you still are not able to hear me, then we'll see what we can do. But do check your connection one more time, because most of the people are able to hear me. Thank you everybody for confirmation. All right. So smoke testing is also called as build verification testing. It is also called what? Build verification, because we are testing the build. Because we are doing what? Because we are testing the build. ऑल राइट, सो इसलिए हम उसको बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं. व्हेन वी गो फॉर स्मोक टेस्टिंग ऑन और ऑन एवरी बिल्ड, ये देखो ये एक्सप्लेन क्या हुआ है. आई डोंट वांट टू गो एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग, बिकॉज दिस डायग्राम इटसेल्फ explains types of smoke testing, फॉर्मल इनफॉर्मल रियल टाइम एग्जांपल दिया है कि हम कैसे, एक कॉमर्स साइट का एग्जांपल दिया हुआ है अमेजोन का, कि अगर हमको कैसे करना है, तो हम उसको, अगर हमको स्मोक टेस्टिंग करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं. ये पूरे ऐसे डायग्राम्स के दिए हुए हैं. वंस यू गो एंड ओपन द नोट्स, you can easily go and get it, see it, and then you will be able to completely understand कि कैसे एग्जांपल्स क्या है स्मोक टेस्टिंग का, कितने टाइप के हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल कब यूज करेंगे, इनफॉर्मल कब यूज करेंगे. ठीक है. सो क्वेश्चंस बहुत आते हैं स्मोक टेस्टिंग पे कि क्यों करते हैं स्मोक टेस्टिंग, व्हाट इज द एडवांटेज. तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांटेजेस. यू कैन जस्ट गो एंड रीड दिस फ्रॉम द स्टोर. ठीक है. नाउ द सेकंड टेस्टिंग वो सैनिटी. वी आर गोइंग टू स्टडी द सैनिटी, पर मैं उसके पहले ना थोड़ा सा रिग्रेशन टेस्टिंग समझाती हूँ, फिर हम सैनिटी आएंगे, क्योंकि अगर रिग्रेशन अच्छे से समझ में आ गया तो सैनिटी तो तुरंत आ जाएगा समझ में. ठीक है. ऑलराइट. सो रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है ना, सपोज कर लो कि क्या हुआ कि हमारे पास आई लव गिविंग एग्जांपल्स ऑफ रियल टाइम, जो आप इमीडिएटली रिलेट कर पाए. मुझे अच्छा लगता है कि जब हम एकदम रियल टाइम एग्जांपल्स दे के आपको समझाऊं, ताकि आप डे टू डे वाले लाइफ में से उसको रिलेट कर पाए. सपोज कर लिए आप सब फोन तो यूज करते हैं, हम सब फोन यूज करते हैं. सपोज आपने फोन खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल आईफोन 13 है आपके पास. ठीक है. अब now you have an iPhone 13. I just imagine that Apple is going to launch iPhone 14 in another couple of months. Already iPhone 14 is launched. Let's take an example that i14 is already there. The Apple is going to launch i15 in 2 months time. ठीक है. एप्पल जो है i15 लॉन्च करने वाला है 2 महीने में. ठीक है. अब ऑब्वियसली वो एक नया फोन लॉन्च करेगा, तो वो क्या करने वाला रहेगा, कुछ तो नए फीचर्स डालेगा, कि ऐसे ही बोल देगा कि ऐसे ही आ गया नया फोन. कुछ तो वर्जनिंग रहेगा उसमें, कुछ नए फीचर्स रहेंगे, कुछ अच्छा रहेगा, कुछ जो काम की चीजें नहीं रहेंगी वो हटेगी. वो उसने नया फीचर डाला. ठीक है. अब तुम मुझे एक बात बताओ, जस्ट टेल मी एंड आई वांट यू टू टाइप. Suppose he has added 10 new features. He is going to check that new features. He will वो क्या करेगा ना, एप्पल क्या करेगा ना, अपने एम्प्लॉयज को या टेस्टिंग टीम को ना वो फोन देगा कि आप ये फोन लीजिए और जो नया नया फीचर्स हमने इंक्लूड किया ना, आप उसकी टेस्टिंग करिए. तो जो कैंडिडेट्स रहेंगे, जो टेस्टिंग टीम रहेगी, वो नए फीचर्स की 10 न्यू फीचर जो ऐड हुए हैं उनकी टेस्टिंग करेगी. ठीक है. अब आपको क्या लगता है कि एप्पल क्या बोलेगा कि ठीक है, नया नया 10 न्यू फीचर काम कर रहा है ना, हम लॉन्च कर देते हैं. वो ये करेगा, या वो जो पहले से चलते आ रहे फीचर्स थे, मतलब जो पहले के 90 फंक्शनैलिटी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, वो उसको टेस्ट करवाएगा टेस्टिंग टीम से, या ये बोलेगा कि ये तो पूरा का पूरा i14 वाला ही है ना, तो ये तो i14 तो अच्छे से मार्केट में चल रहा है, हम तो नया i15 के लिए तो सिर्फ 10 न्यू फीचर लॉन्च कर रहे हैं ना, तो हम एक काम करते हैं, 10 फीचर्स का टेस्टिंग कर लेते हैं, और i14 तो ऑलरेडी मार्केट में धूम मचा रखा हुआ है. सो वी why not we just launch with the 10 new features and launch i15. Will this work, or will an Apple say that I also want to test i14 के जितने 90 features थे, I also want to test that plus the new 10 features. What will be the approach? What do you think? What do you think? What new approaches will be there? What approach should Apple take? आपको क्या लगता है? Just, yeah, keep keep answering, guys, so that I'll reply to everybody that what is the right approach to this. Yes. So many of you have said right
that all new features, all 100 features and test all. Why? Because why? Because that what happens is when you build new features, there are high chances that the existing features might get impacted. There are many chances that existing features gets impacted. Okay, so the right approach is that whatever was working is okay, but along with the new one, it is very important that you test the existing feature also, and that this kind of testing is called regression testing. This kind of feature is called regression testing. All right, so let me just quickly. So very important in terms of interview, that why they keep on asking that what is the difference between retesting and regression testing. That is one of the favorite questions of the interviewer, that they keep on asking कि regression testing में और retesting में क्या difference है. So this is what it is. Retesting means किसी एक चीज को, वही चीज को दोबारा टेस्ट करना. रिग्रेशन टेस्टिंग मीन्स क्या होता है कि आप वो टेस्टिंग को आप ऐसी टेस्टिंग कर रहे हैं जिसमें आप एग्जिस्टिंग फीचर्स की भी टेस्टिंग कर रहे हैं प्लस द न्यू एडिशनल फीचर्स टू एंश्योर, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू एंश्योर that the new code has not broken the existing code. What we need to say, that new code is not broken the existing code. Okay, that is why we do the regression testing. All right. So regression testing is a black box testing. Everything that we are doing is black box testing only. Regression testing is making sure, means it is to ensure that the product works fine with the new functionality, with the bugs, with the fixes, with the change in the existing feature. So that is where we have to, and regression testing is a must. क्योंकि ना वो हमको confidence दिलाता है, वो हमें कॉन्फिडेंस देता है हमारे एप्लीकेशन पे. वो हमें बोलता है कि कल जो चीज काम कर रहा था ना, वो आज भी काम कर रहा है. इट गिव्स दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. दैट इज व्हाई वी नीड टू डू एन रिग्रेशन टेस्टिंग. यहाँ पे एकदम अच्छे से एग्जांपल से सिखाया. हियर वी आर गोइंग टू टेक अ केस टू डिफाइन द रिग्रेशन टेस्टिंग इफिशिएंटली. कंसीडर अ प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट के साथ मैंने एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया है. So we can perform regression testing in the following scenarios when a new functionality is added to their application. ठीक है, regression मतलब नया functionality. जैसे मैंने वर्जन की बात की थी, आईफोन का एग्जांपल दिया था कि 15 लॉन्च हो रहा है तो 14 तक के सारे फीचर्स को वो टेस्ट करेगा. ठीक है. when there is a change in the requirement, जब कुछ एक नई चीज अचानक से आ गई है, when the defects are fixed. नाउ डिफेक्ट आर फिक्सेस. हम ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन के टाइम पे. ठीक है, ये वाला व्हेन देयर इज अ परफॉर्मेंस इशू फिक्स, मतलब ये भी डिफेक्ट में ही आ गया. व्हेन देयर इज एन एनवायरनमेंट चेंज, सपोज हमारा पहले डेटाबेस ना माई सीक्वल था, अब हम ओरेकल में मूव हुए हैं, तो ये इतना बड़ा माइग्रेशन है. इसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन. सो दिस इज अ बिग माइग्रेशन. और जब हम इस माइग्रेशन से माई सीक्वल से ओरेकल में मूव करेंगे ना, तो हम पूरे सिस्टम का एक बारी क्या कर लेंगे? रिग्रेशन टेस्टिंग. ठीक है. This is called regression testing. So guys, you need to very much understand that what is the difference between regression testing, what is the difference between smoke testing. ठीक है. All right, let me quickly now look at the questions. We are going to just look at the I'm just looking at the questions. Yeah, allow me a couple of minutes. I'm just reading that. All right. Okay.
So the people who have asked me the link for the notes, I have just pasted it here. Okay. So you can get all the day recordings and the study material. Yes. So you can just go here and then check it. Okay. This is the link for getting all the study materials and your certificate at the end of the class. Okay. ओके लेट अस मूव फॉरवर्ड सो व्हाट डिड आई से दैट हम जब रिग्रेशन टेस्टिंग कर लेंगे तब हम सैनिटी टेस्ट पर आएंगे क्योंकि आपको रिग्रेशन टेस्टिंग समझ में आ गया है अब हम सैनिटी टेस्टिंग पर आते हैं अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिग्रेशन एंड सैनिटी एंड बेसिकली डिफरेंस बिटवीन स्मोक एंड सैनिटी बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्मोक टेस्टिंग एंड सैनिटी टेस्टिंग इज द सेम हम स्मोक टेस्टिंग कब करते हैं जब हमारे पास ना न्यू बिल्ड आता है जब हमारे पास नया बिल्ड आता है ना सबसे पहली बार मतलब उसका वर्जन 0.1 आया अब मेरे पास 0.1 आया तो मैं पूरी टेस्टिंग रियल में स्टार्ट करने के पहले क्या करूंगी कि थोड़ा सा स्मोक टेस्ट कर लूंगी ऊपर ऊपर चेक कर लूंगी कि यार ये काम तो कर रहा है ना इज दिस वर्किंग कैन आई डू अ डीपर टेस्टिंग इनटू इट एंड आई गेट एन आंसर यस देन आई मूव फॉरवर्ड now, what is the sanity testing? Suppose guys, we have done a regression testing. Now you tested around 100 features. Like I said, 90 features पहले के थे और 10 new features add हुए. तब आपने पूरा 100 का एक पैक बनाया और आपने 100 वो फीचर्स की टेस्टिंग कर डाली. ठीक है, अब उसमें से ना 20 फीचर काम नहीं किया. क्या हुआ 20 फीचर काम नहीं किया तो हम उसको बोलते हैं डिफेक्ट्स रेज करना हम वो डिफेक्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे बट अभी अभी इतना समझिए कि जो 20 फीचर काम नहीं कर रहा है हम उसको बोलते हैं कि दैट वी आर गोइंग टू रेज अ डिफेक्ट फॉर what for for raising a for the 20 features that is not been working उसके लिए हमने डिफेक्ट रेज किया अब हम डिफेक्ट किसको देंगे फिक्स करने के लिए ऑब्वियसली डेवलपमेंट टीम को क्योंकि दे आर द पीपल हु आर गोइंग टू फिक्स द डिफेक्ट्स राइट सो दे हैव नाउ फिक्स्ड द डिफेक्ट्स उन्होंने बोला कि ओके फाइन वी एक्सेप्ट दोस डिफेक्ट्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू फिक्स इट एंड देन दे फिक्स द डिफेक्ट्स अब जब वो फिक्स करके हमको एक नया बिल्ड देते हैं एक नया बिल्ड देते हैं दैट गाइस नाउ दिस इज फिक्स ये यूआरएल लीजिए और आप इस पे अपनी टेस्टिंग करिए तब मैं क्या करूंगी तब मैं पूरा डीप में वो 20 को चेक करने के बजाय ना एक बार फिर से ऊपर 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 चेक करूंगी उसको बोलते हैं सैनिटरी टेस्टिंग मतलब स्मोक टेस्टिंग भी ऊपर ऊपर चेक करना हुआ सैनिटरी टेस्टिंग भी ऊपर ऊपर चेक करना हुआ लेकिन दोनों के बिल्ड में अंतर है स्मोक टेस्टिंग जब हमें न्यूली डिप्लॉयड बिल्ड मिलता है पहली बार then we try to do a smoke testing sanity testing whereas when there are fixes when there are multiple fixes बहुत सारे fixes करने के बाद जब हमें जो बिल्ड मिलता है उसका जब हम ऊपर ऊपर टेस्टिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं सैनिटी टेस्टिंग and this is an important question wherein people ask, what is the difference between smoke test and sanity testing? ठीक है? All right? Okay. ये देखो sanity testing is performed on the stable build and it is also known as a variant of regression testing क्योंकि हम regression testing का वेरिएंट है क्योंकि हम रिग्रेशन टेस्टिंग के बाद इसको इस पे देखते हैं कि हमने जो रिग्रेशन पे डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई किए थे वो फिक्स हुए हैं कि नहीं हुए ये सारा सारा चीज का टेस्टिंग जो होता है उसको हम बोलते हैं सैनिटी टेस्टिंग ठीक है ये देखो which is used sanity testing is used to check whether the bugs have been fixed after the build or not मतलब after the build or not मतलब एक build हमें मिला हुआ है और वो बिल्ड मिल चुका है हमने स्मोक कर लिया हमने एसआईटी कर ली हमने सारी तरह की टेस्टिंग कर ली और लास्ट में हमने रिग्रेशन टेस्टिंग की और रिग्रेशन टेस्टिंग में बहुत सारे डिफेक्ट्स मिले वो सारे डिफेक्ट्स फिक्स हो गए और वो जब मेरे पास आया तब मैंने एक नजर देखा कि इंपॉर्टेंट चीज पे क्लिक कर रही हूँ तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है that is called a sanity testing. So when people ask you what is the difference between sanity testing and smoke testing, what do we need to say? That the smoke testing is done to ensure that the new build is acceptable or not, whereas sanity testing is used to check whether the bugs have been fixed after the build or not. After the build or not. That is called as a sanity testing. And regression testing, we already covered that is called a regression testing. Okay. Now we are going to move on to the acceptance testing. Either you say this as an acceptance testing or you say this as a user acceptance testing, UAT. Okay. An important point of a testing and another very important type of a testing. This is what we are learning. This is we are learning the types of testing.
दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग द टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, यूएटी क्या होता है? अब हमने हम टेस्टर्स हैं, वी आर सॉफ्टवेयर टेस्टर्स एंड वी आर मैनुअल टेस्टर्स एंड वी हैव डन द टेस्टिंग फॉर द एप्लीकेशन, वी हैव वेरीफाइड एवरीथिंग एज पर द बीआरडी, वी हैव डन अ नेगेटिव टेस्टिंग, हमने नेगेटिव टेस्टिंग भी की कि ऐसे वैल्यूज देके देखे कि सिस्टम ब्रेक तो नहीं हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, वी ट्राई टू ब्रेक द सिस्टम। हमने वो सब टेस्टिंग कर ली, हमें सब सही लगा। लेकिन जब वो क्लाइंट के पास जाता है ना, तो क्लाइंट बोलता है कि मैं एक बार मार्केट में उसको लॉन्च करने से पहले एक बार खुद यूएटी कर लेता है। वो उतना डिटेल में, हमारे जितना डिटेल और उसमें उतना डिटेल में नहीं जाके करेगा, मे बी ही विल नॉट डू अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव टेस्टिंग, बट वो इंपॉर्टेंट फीचर्स की टेस्टिंग जरूर करेगा। वो इंपॉर्टेंट फीचर्स की जरूर टेस्टिंग करेगा कि अगर उसको चाहिए कि पैसे विड्रॉ होते हैं और वो पैसे विड्रॉ होके जिस 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 जिसके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर होने चाहिए, अगर वो ट्रांसफर 15 मिनट में होना चाहिए, उसका ये रिक्वायरमेंट था, तो वो ये टेस्ट जरूर करेगा। मतलब वो सिंपल से क्या करेगा कि जो रिक्वायरमेंट में उसने लिखा है और वो 1 to 1 करके चेक करेगा और उसको लगेगा कि हाँ अब ये सही, सच में सही काम कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज अ यूएटी। कभी कभी क्या होता है ना कि यूएटी में रिक्वायरमेंट तो हमने लिख दिया, लेकिन रिक्वायरमेंट एट द एंड ह्यूमंस ही लिखते हैं। तो जब वो लिखता है ना और जब वो एक्चुअली देखता है, तो उसको लगता है कि ठीक है, मैंने मैंने ही लिखा है, ये मुझे ऐसा चाहिए था, बट बनने के बाद ना ये इतना वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट इन माई माइंड। मतलब मेरे दिमाग में जैसा था ना, वो मैंने भले लिख दिया, लेकिन बनने के बाद ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, या उसकी फंक्शनैलिटी उतनी अच्छी काम नहीं कर रही है। तो वो क्या अप्रोच ले सकता है, और हम क्या करेंगे, हम तो चूंकि यूजर्स नहीं है, तो हम क्या, हम अच्छा लग रहा नहीं लग रहा उस पर नहीं जाएंगे। हमको जो बीआरडी में दिखा, हमने वेरीफाई कर लिया, ये काम कर लिया। लेकिन यूजर कौन है? यूजर तो वो है जो एक्चुअली में उसको यूज करने वाला है। भले हो सकता है कि उसने कुछ अच्छा सोच के उस टाइम पे लिखा होगा कि ऐसे काम करेगा तो बहुत बेनिफिशियल होगा, लेकिन जब वो कन्वर्ट होके आया बिल्ड में या जब एप्लीकेशन पे, तब वो ना एक्चुअली में उसका भी पर्पस नहीं सॉल्व कर रहा है। तो वो उस केस में क्या बोल सकता है कि दैट इज ओके, दैट दिस वाज मिस्ड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट, मुझे, मैंने ये उतनी अच्छे से रिक्वायरमेंट नहीं दी, क्योंकि बनने के बाद अब मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये कुछ काम आने वाला है, हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं क्या। ही इज वेरी मच फ्री टू कीप दिस पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द डेवलपमेंट एंड द टेस्टिंग टीम। तो हम क्या बोलेंगे, हम हमेशा ना तो हम हमेशा हाँ बोल सकते हैं, ना तो हम हमेशा नहीं बोल सकते। हम इवेल्युएट करेंगे कि वो जो चेंज मांग रहा है वो कितना बड़ा चेंज है। हम उसको देखेंगे कि वो जो रिक्वेस्ट बोल रहा है अकोमोडेट करने के लिए, उसमें कितना एफर्ट्स डालने वाला है। अगर वो सिंपल सा माइनर चेंज है जो एक दिन में डेवलप हो सकता है और एक दिन में टेस्ट हो सकता है, देन वी विल अकोमोडेट, क्योंकि एट द एंड वो कौन है, वो हमारा कस्टमर है। सो हम ऐसे छोटे छोटे चेंजेस को क्या कर सकते हैं, एकोमोडेट करके यूज कर सकते हैं, एक नया बिल्ड डिप्लॉय कर सकते हैं और उसको बोलेंगे कि हमने तुम्हारा चेंज को एकोमोडेट कर लिया है, डिप्लॉय कर लिया, अब तुम वापस एक बार यूएटी करो और चेक करो कि वो हो रहा है, कि तुमने जो चेंज बोला था दैट इज रिफ्लेक्टेड और नॉट। दैट इज कॉल्ड एज अ यूएटी। दैट इज कॉल्ड व्हाट, यूएटी। ठीक है, और पूरा डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है, दैट हाउ डू यू डू अ यूएटी, और ये डायग्राम के साथ समझाया हुआ है इसमें, दैट हाउ डू यू डू एन यूएटी। ठीक है, नाउ दिस वाज द ऑल द मेजर टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। अब उसके बाद भी हमारे पास दो तीन और है, हम वो सब भी देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब we have done smoke, we have done sanity, we have done regression, we have done UAT, we are going to do now exploratory testing. What does the meaning of what explore means? What does an explore means? Can anybody just simply tell me the meaning of explore in the chat box? Do to get new things, search, increase, doing random testing and get to know the functionality. Yes, so many people have typed it to search, to increase, to get new things. Out of those, Sohil says that doing random testing and getting to know the functionality. It has to be getting to know the functionality. That's correct. Now, what happens sometimes is you get a new phone.
करेक्ट, आप न्यू फोन लेके आते हैं, यू गेट अ न्यू फोन एंड यू ऑल्सो गेट अ यूजर गाइड। ठीक है, आप जनरली मुझे बताइए कितने लोग उस यूजर गाइड को रेफर करते हैं? we what do we try to play around with the application। हम यहाँ क्लिक करते हैं, वहां क्लिक करते हैं, हम देखते हैं कि ये कैसा है, हम इस बटन को क्लिक करते हैं, हम सेटिंग्स में जाते हैं, we try to play around with the application। what do we try to play around। उसका क्या मतलब हुआ कि we try to explore the system। so exploratory testing is what sometimes क्या होता है ना, कोई कोई कंपनीज में या कोई कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि जब हमारे पास ना BRD नहीं बनती है। what I said at the first place was that BRD is a, excuse me guys, yeah, sorry. So what do we say? That the BRD is a Bible for us. It is. But there are projects. See, not everything always is an ideal scenario. ठीक है, हम काम में हम कहीं भी हमें ऐसा कुछ एकदम सब कुछ बना बनाया और अच्छा नहीं मिल जाता है, राइट? सो what we have is sometimes that we don't have the BRD, and sometimes then also people will ask us to test। as a tester we have to be confident। हम ये नहीं बोल सकते कि हम क्यों कर रहे हैं, हमें नहीं करना है। so we are, what we do is we are always open to say, we, and in fact we should always say that no, fine, it is fine, I will learn, I will explore and learn। in that type of this we called as an exploratory testing। and suppose is if you have a senior people in your team, you can always get a help of them कि हम एक कोई भी वेबसाइट लो तो नॉर्मली एक ही जैसे होती है ना, जैसे 3 बार है उसको क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शंस दिखाएगा, कहीं कुछ आएगा। ऐसा डिफिकल्ट रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है कि आप कुछ एक्सप्लोर करके कुछ सीख नहीं सकते या कुछ एक्सप्लोर करके अपना कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं ना हम टेस्ट केस भी लिख सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। yeah। अब द लास्ट वन इज द एडहॉक। एडहॉक टेस्टिंग मींस जब हमारे पास सेम सेम एडहॉक एंड एक्सप्लोरेटरी मींस हम जब एडहॉक में जब हमें ऐसे ही मिल गया है और हम कहीं भी क्लिक करके कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हमारे पास कोई एक बेस या फिर प्रॉपर सा टेस्ट केस या फिर एक प्रॉपर सा फ्लो नहीं है, लेकिन हम फिर भी कभी ये कर रहे हैं, यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो कभी यहाँ क्लिक कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं सिस्टम को ब्रेक करने का। तो दैट इज कॉल्ड एज एन एडहॉक टेस्टिंग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एन एडहॉक टेस्टिंग। ठीक है, सो गाइस वी लर्न, मैं आगे बढ़ रही हूँ अपना, मैं प्रेजेंटेशन पे जा रही हूँ अपने डे 3 के। तो व्हाट ऑल वी डिड दिस, मैं जो जो कंप्लीट जो हो जाता है ना मैं उसको ऐसे कर लेती हूँ। तो हमारा ये दो तो कंप्लीट हुआ नहीं है, लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और वो हमारा आज का टॉपिक है वो। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा। ठीक है, एंड इट वाज अ वेरी बिग वन वेर इन यू गेट टू नो द टाइप्स ऑफ टेस्टिंग दैट यू यूज एट दी सर्टेन लेवल। स्टार्ट करने के टाइम पे आप कौन सी टेस्टिंग यूज करोगे, जब पूरी फंक्शनैलिटी खत्म हो गई है तब कौन सी टेस्टिंग करोगे, ठीक है, जब बग फिक्स हो गया है तब कौन सी टेस्टिंग करोगे, जब हम यूजर को दे रहे हैं तब हम कौन सी टेस्टिंग करेंगे। तो ना डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में ना टेस्टिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में क्या होती है, टेस्टिंग होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज अ टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डू व्हाट, now we are actually going to understand the next phase, which is what we are going to learn as the levels of software testing। और दो मॉडल्स है हमारे पास, एक वी मॉडल है और एक वाटरफॉल मॉडल है। वी आर गोइंग टू लर्न दैट। ठीक है, okay, so someone asked me, ma'am, what is the difference between the ad hoc testing and the exploratory testing? Okay, very good question. So the difference between the ad hoc testing and the exploratory testing is, exploratory testing में guys, you are exploring the application. You're not trying to break the application actually. You're trying to do what? You're trying to एक्सप्लोर द एप्लीकेशन। मतलब आप एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मैं सीख रहे हैं कि मतलब पॉजिटिव फ्लो भी देख रहे हैं आपकी एप्लीकेशन किस किस लिए बना है। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट डज एन एप्लीकेशन इज सपोज टू डू। ठीक है, आप ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। आपने पहली बार कोई वेबसाइट देखी है तो आप समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली ये वेबसाइट करता क्या है।
एडहॉक टेस्टिंग में ना आप उस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप टेस्ट केस नहीं मिल रहा है, आप कुछ भी इनपुट दे रहे हैं, आप कुछ भी कहीं भी क्लिक कर रहे हैं, एंड इट इज अ काइंड ऑफ, मोस्टली इट इज अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव टेस्टिंग. That is what is called as an ad hoc testing, wherein you know the application well. Okay, आपको एप्लीकेशन पता है. Unlike in exploratory testing, you do not know the application. In ad hoc, you know the application, but you are trying to do a lot of negative testing to that. That is called as ad hoc testing. ठीक है. मैम, मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या डिफरेंस, टेस्टिंग डिफरेंस क्या है? ओके. See, manual testing is a testing wherein you use your own understanding, and you write the test cases and you do it manually. मतलब आप सारे steps पे खुद क्लिक करते हैं, आप एक step पे आप जाते हैं, फिर एक step के बाद आप दूसरे step पे जाते हैं. जबकि ऑटोमेशन टेस्टिंग एक टूल यूज होता है, टूल्स ऑटोमेटिकली एक टूल यूज होता है. guys, you remember, if I have to give you a simple example, आज से पहले जब फैंस नहीं थे, या फिर फॉर दैट मैटर मिक्सी नहीं था, तो लोगों को कुछ कुछ ग्राइंड करना है, तो हाउ दे यूज टू डू इट, दे यूज टू डू इट मैनुअली. वो खुद एक एक पत्थर पे खुद ही करते थे ग्राइंडिंग का काम. दैट इज कॉल्ड एज समथिंग दैट यू आर डूइंग ऑन योर ओन. और जब हमारे पास टूल्स आ गई, मशीन्स आ गई, देन यू आर डूइंग समथिंग एज अ ऑटोमेशन. सो ऑटोमेशन टूल्स होते हैं जो हमें सीखना पड़ता है उसकी टेस्टिंग करने के लिए. जैसे सबसे ज्यादा जो मार्केट में चलता है वो है सेलेनियम टूल, यूएफटी टूल. ये सारे टूल्स जो है ऑटोमेशन के मार्केट में टूल्स है, और कंपनी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन टूल्स के लिए कैंडिडेट्स खोजती है. ठीक है. ठीक है. So that is called as the difference between the manual and the automation testing. All right, guys. So what we are going to move on to now? We are going to move on to day 3. Day 3 में types of software testing कर लिया हमने. Now we are going to move on to the levels of software testing. चलो जल्दी जल्दी levels पे चलते हैं. Types of software testing मैंने पूरा सिखा दिया तुम लोगों को. Levels of testing. See, everybody is able to see the screen. Everybody is able to see the screen. Yes. अब लेवल ऑफ टेस्टिंग क्या है? यू लेवल मींस एक लेवल के बाद ही दूसरा लेवल आएगा. पहला लेवल, दूसरा, तीसरा लेवल. पहले हम यूनिट टेस्टिंग करेंगे, मतलब एक छोटे से कंपोनेंट का एक इंडिविजुअल एंटिटी की टेस्टिंग करेंगे. फिर हम उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे. फिर हम उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग करेंगे. और फिर हम उसके बाद लास्ट में एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेंगे. ये देखो, टेस्टिंग द इंडिविजुअल कंपोनेंट, टेस्टिंग द इंटीग्रेटेड कंपोनेंट, टेस्टिंग द एंटायर सिस्टम, एंड टेस्टिंग द final system. This is called as the levels of testing. ठीक है. तो यूनिट टेस्टिंग जनरली कौन करेगा? डेवलपर करेगा. इंटीग्रेशन टेस्टिंग टेस्टर करेगा. सिस्टम टेस्टिंग टेस्टर करेगा, हम करेंगे. एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, या तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज यूएटी टेस्टिंग, या तो ये भी टेस्टर करेगा. एक एक सेट ऑफ टेस्टर्स होंगे, जो एक सेट ऑफ टेस्टर्स होंगे जो एसआईटी करेंगे, मतलब सिस्टम टेस्टिंग. एक सेट ऑफ टेस्टर्स होंगे जो यूएटी करेंगे. जरूरी नहीं है कि मैंने बोला यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बिजनेस या यूजर्स ही करेगा. अगर हमारे पास एक टीम है, डेडिकेटेड टीम है, जो कि सिर्फ बिजनेस के साथ कम्युनिकेट करती है और उसको पता है कि यूएटी कैसे करना है, यूएटी में क्या टेस्ट करना है, तो देयर कैन बी अ टीम हु कैन डू अ यूएटी टेस्टिंग अलोंग विद द यूजर्स. ठीक है. सो दिस इज द लेवल्स ऑफ टेस्टिंग. अब ये देखो, मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि कौन करता है. यूनिट टेस्टिंग done by developers, integration testing done by testers, system testing done by testers, and acceptance testing done by end users. This is there in most of the cases, but यहाँ पर भी done by a dedicated testing team हो सकता है. ठीक है, हो सकता है. अब हाँ, मैं ये खोल के बस एक जरा सा और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमें, इन केस यू गाइज आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन, मुझे पता है ये नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये वर्ड डॉक्यूमेंट है. लेट मी क्विकली share this also. दिख रहा है? डिफरेंट लेवल ऑफ, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेवल्स ऑफ टेस्टिंग. In case you have seen this, you are able to see this. Yes, you are able to.
So we have just explained what is a level of testing, unit testing में क्या होता है, integration में क्या होता है, with examples. This also will be uploaded in the store. आप इस उसको भी जाके एक बार read कर सकते हैं. ये conclusion है यहाँ पे कि क्यों किस level पे क्या use करना है, कब use करना है. So you can just go and see this also. This is also available in our store. ठीक है? Uh, this is done. Levels of testing is done. Now what? Now now let us today we also wanted to understand two models. I'm going to cover both the models today so that we are good for before we complete the session today. The 5 stages of the waterfall model. So guys, so there is in the software industry we have majorly two models that we work on. One is the waterfall model, one is the VNV model, and the another one is the agile model. ठीक है, हम agile में भी काम करते हैं. Of course agile is also a very upcoming and a very widely used methodology today in the IT industry. We use that as well, waterfall, agile and VNV. ठीक है. Okay. So the 5 stages of the waterfall model are the one that we studied in the SDLC. So SDLC के जो stages थे वो waterfall model के stages थे. ठीक है. रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन एंड मेंटेनेंस. इसके इसके ये जो सीढ़ी बनी हुई है इसका ये मतलब है कि जब तक रिक्वायरमेंट खत्म नहीं होगा तब तक तुम डिजाइन में नहीं घुस सकते हो. जब तक डिजाइन खत्म नहीं होगा तब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, मतलब बिल्ड. जब तक बिल्ड नहीं होगा तब तक हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, मतलब वेरिफिकेशन, मतलब टेस्टिंग. जब तक टेस्टिंग नहीं खत्म होगा तब तक मेंटेनेंस या सपोर्ट या वो उसका काम नहीं कर सकते. मतलब हर एक स्टेप के बाद ही एक स्टेप आएगा, हर एक स्टेप के बाद ही एक स्टेप के बाद आएगा. तो इसमें नुकसान क्या रहता है ना, इसमें मतलब इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं कभी कभी. कि जब मान लो तुमने बोला कि अब रिक्वायरमेंट मेरा खत्म हो गया, अब डिजाइन पे चलोगे, तो ये वाली डिजाइनिंग टीम या आर्किटेक्चर की टीम डिजाइनिंग कर रही है. अचानक से बिजनेस एनालिस्ट को या यूजर को एक नया रिक्वायरमेंट आ गया, तो वो फिर उस टाइम पे नहीं बोल पाएगा, क्योंकि ये मॉडल ऐसा है कि हमने एक बार रिक्वायरमेंट दे दी, तो जब तक ये पूरा का पूरा फेज खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते हो. इसी वजह से ना धीरे धीरे ये मॉडल अब लोग यूज नहीं करते, अब लोग अजाइल यूज करते हैं. अजाइल जस्ट इसका उल्टा बोलता है. अजाइल बोलता है कि हम फटाफट चेंजेस को एकोमोडेट कर सकते हैं. अजाइल ये बोलता है. इसीलिए अजाइल वाला जो मॉडल है दैट इज वेरी वेरी मच वाइडली नाउ यूज्ड. और वाटरफॉल मॉडल अब बहुत कम कंपनीज यूज करती हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकती कि नहीं करती हैं. मैंने इतनी कंपनीज में काम किया, उसमें से मुझे 50-50 मिला है कि 50% आज भी लोग वाटरफॉल पे काम करते हैं और 50% लोग आज भी अजाइल पे काम करते हैं. अब अजाइल इज ग्रोइंग, people are accommodating agile and leaving waterfall model. But then yes, you need to know what is a waterfall model and then what is the agile. और उसके और एक मॉडल which is called as verification, V&V model. Let's look at that. ये मैंने बहुत और डिटेल में लिखा, रिक्वायरमेंट, फिजिबिलिटी, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस. ये एक स्टेप के बाद ही एक स्टेप आएगा, एक स्टेप के बाद ही एक स्टेप आएगा. जस्ट कीप दैट इन माइंड. ठीक है. अब what is the next one? Next one is V and V model. Can you see this? Can you see this? This is the shape of a V model. So this is called a V and V model. Okay. So this is called as V and V model means ये एक V है और एक दूसरा V है. ये वेरिफिकेशन फेज और ये वैलिडेशन. हमारा काम यहाँ स्टार्ट होता है, हमारा काम यहाँ होता है. ये वाला काम हमारा है वैलिडेशन. वेरिफिकेशन मतलब हम अभी तक रिक्वायरमेंट कर रहे थे, हम अभी तक उस पे एसआरएस बना रहे थे, हम अभी तक उसमें हाई लेवल डिजाइनिंग कर रहे थे, हम उसके बाद लो लेवल डिजाइनिंग कर रहे थे, फिर हम कोडिंग कर रहे थे. यहाँ पर भी ये साथ साथ में चल रहा है गाइस, यहाँ पर भी ये साथ साथ में चल रहा है. मतलब जब कोई लो लेवल डिजाइनिंग कर रहा होगा तो वो साथ साथ यूनिट टेस्टिंग भी कर सकता है. दिस इज अ मैपिंग कि हाई लेवल डिजाइन हो रहा है तो तुम इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी करो वहां पर. सिस्टम रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में सिस्टम टेस्टिंग भी हो रहा है. सो दिस इज ए वन टू वन मैपिंग है. दिस ये जो लाइंस है ना, दिस इज अ वन टू वन मैपिंग. और लास्ट में जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगा वो किसके अगेंस्ट करेंगे?
वो हम बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट करेंगे, मतलब वो यूजर क्या करेगा एग्जैक्टली इसको रेफर करके एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेगा. So this is where this is called as a V&V model, wherein every phase is mapped to a testing phase. एक phase एक testing phase को map होता है, mapping. This is called a V&V model. V&V model में और इसमें जो एक एक लाइन है ना, एक लाइन है उसमें जो डिफरेंस है, people say that what is a V&V model. So this is a very good line. I'm typing it in our chat box also. वेरिफिकेशन क्या बोलता है, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट. वैलिडेशन क्या बोलता है, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट. देखो सिर्फ राइट प्रोडक्ट और यहाँ पे आगे पीछे हुआ है, सिर्फ एक जगह प्रोडक्ट राइट है और एक जगह राइट प्रोडक्ट है. ये लिखने से इसका पूरा मीनिंग बदल गया है. इसका पूरा मीनिंग, आर वी बिल्डिंग दी प्रोडक्ट राइट, मतलब क्या हम प्रोडक्ट को सही तरीके से बना रहे हैं. मतलब जो हमें एप्लीकेशन बनना था, क्या हम सही तरीके से एप्लीकेशन को बना रहे हैं. ये कौन से फेज में होगा, ये कोडर बोलेगा या जो बिजनेस टीम रहेगी वो बोलेगी. टेस्टिंग के पास आएगा ना तो टेस्टिंग टीम क्या बोलेगी, हैव वी बिल्ट द राइट प्रोडक्ट. क्या सचमुच में हमने सही प्रोडक्ट बनाया है. मैंने तुम लोगों को एक चीज एक्सप्लेन की थी ना कि जरूरी एब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी, जरूरी नहीं है कि अगर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में कोई एरर नहीं है तो वो बहुत ही अच्छा है, जरूरी नहीं है. उसी समय हमें ये क्वेश्चंस पूछना रहता है कि क्या हमने सही प्रोडक्ट बनाया है, मतलब यही प्रोडक्ट था ना जो कस्टमर को चाहिए था, यही प्रोडक्ट था ना जो कस्टमर को चाहिए था. फॉर एग्जाम्पल, सपोज तुमने अपना घर की डिजाइनिंग की है, तुमने आर्किटेक्ट ने तुम्हारे घर की डिजाइनिंग कर ली, तुम्हारा घर बन गया. जब तुम घर बनने के पहले तुमने अपने डिजाइनर आर्किटेक्ट को कहा था कि मुझे ना 4x4 का विंडो चाहिए क्योंकि मुझे 4x4 का विंडो अच्छा लगता है. आर्किटेक्ट को लगा, जब वो घर बनाने लग गया उसको लगा कि ये घर तो बड़ा है, मैं उसमें 4x6 का विंडो निकाल देता हूँ, कस्टमर को बहुत अच्छा लगेगा. उसने 4x6 का विंडो निकाल दिया. और जब तुम वो घर पे आए तो उसने बोला कि देखो सर कितना अच्छा लग रहा है, 4x6 का विंडो है. तुम बोलोगे कि चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना है ये, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट तो 4x4 का था, वो तो तुमने मीट ही नहीं किया. वॉट एवर इट इज, बाकी लोगों को शायद बहुत अच्छा लग रहा होगा. व्हेन पीपल आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड दे कैन से दैट दिस इज अ गुड वन, बट देन यू डिड नॉट लाइक इट बिकॉज दैट वाज नॉट योर रिक्वायरमेंट. अच्छा और गलत नहीं है यहाँ पर है कि तुमको क्या चाहिए. And that is what we are doing in validation. That are we building the right product? That is what we are doing in validation testing. Are we building the right product? क्या सचमुच हमने right product बनाया है? This is what it is called the right product. And that is what I have explained here. And this is what I have explained here. ठीक है? That this is the model, waterfall model and V model. So let me go up and then we have covered all this. Introduction to software testing, principles, and I think we have covered a lot in all 3 days. So tomorrow we are literally going to see test case development. मतलब हम test case लिखते कैसे हैं. टेस्टिंग टेक्निक्स अभी भी बहुत है हमारे पास. टेस्ट केस डेवलपमेंट है, टेस्टिंग टेक्निक्स है, डिफेक्ट मैनेजमेंट है, टेस्ट क्लोजर है, बेस्ट प्रैक्टिसेस है, डेटाबेस टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे. ठीक है. So this is what is there for today. So let me just go through the questions. I see a lot of people asking questions. मुझे let me just check the questions. Uh, okay, so someone is asking me, ma'am, what is the QA expert course? Okay, let me just type it again for you people. And so V&V model is the same. Difference between V&V model is no. V&V model is the one model, Anupama. उसका नाम है V&V मॉडल, उसमें वो अलग नहीं है, वो एक ही मॉडल है. ठीक है. ओके. Okay, so someone asked me, what is the difference between regression and retesting? Can anybody reply? I will reply after looking at the answers. If anybody has a good understanding of what I explained, difference between regression and retesting, a very important interview questions. किसी को है तो please type करिए, तब तक मैं एक और एक क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ.
If anybody knows a correct answer between retesting and regression, please reply. Yes, right, right. So people have replied that regression testing is to ensure that the existing functionalities are not broken due to the new functionality. मतलब जब जब नया फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस होता है एप्लीकेशन में, तो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी ब्रेक नहीं हुई है, उसको बोलते हैं रिग्रेशन। और रीटेस्टिंग मतलब सेम चीज को तुम रीटेस्ट कर रहे हो, सेम चीज को। मान लो वो पहले काम नहीं करता था, डेवलपर ने बोला कि मैंने अब फिक्स कर दिया है, तब जब तुम वापस काम करने लग जाते हो, तब जब तुम उसको वापस टेस्ट करने लग जाते हो, उसको बोलते हैं हम रीटेस्टिंग। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? उसको हम बोलते हैं रीटेस्टिंग। रियल टाइम एग्जांपल ऑफ स्मोक एंड सैनिटी मैंने वो नोट्स में डाल के रखा हुआ है, रियल टाइम एग्जांपल को वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि वहां पे रियल टाइम एग्जांपल क्या है। ठीक है मैम, शेयर दी स्टोर लिंक। Okay, I'm sharing it one more time. I already have shared it multiple times. It's okay. I'm sharing one more time. You just go there and you can check that. Okay. And what questions are we having? मैम ये लाइव मैम ये लाइव प्रोजेक्ट क्या है, उसमें क्या कवर करेंगे? ओके, सो लाइव प्रोजेक्ट में गाइस इट विल बी अ प्रोजेक्ट दैट विल बी गिवन टू यू। एक वेबसाइट आपके पास रहेगी जहां पर आपके पास एक बीआरडी रहेगा, और जहां पर आपको एक टेस्ट केसेस क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पे आपका हैंड्स ऑन होता है, जिसको हम हैंड्स ऑन बोलते हैं। तो हम उस पे हैंड्स ऑन करेंगे कि आप वेबसाइट पे बीआरडी पढ़ेंगे, फिर आप उस पे हम पूरा एसटीएलसी एग्जीक्यूट करेंगे। हम बीआरडी पढ़ेंगे, फिर हम उस पे टेस्ट केसेस लिखेंगे, फिर हम उस पर एग्जीक्यूशन करेंगे, फिर उस पर डिफेक्ट्स होगा, फिर उसको कोई फिक्स करेगा, एंड देन यू विल डू अ रीटेस्टिंग। सो इट विल बी अ काइंड ऑफ एन हैंड्स ऑन, जब आप बोल सकते हैं कि हाँ, कि जब जब कभी अगर आपने कभी टेस्टिंग में काम नहीं किया है, देन यू विल बी हैविंग एन एक्सपोजर टू द लाइव प्रोजेक्ट। That is what we have. So we have our own website wherein we give the access to the candidates who enroll, और वो उसके पास लॉगिन क्रिएट करके अपना उसके अंदर जाके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज, अ लाइव प्रोजेक्ट टेस्टिंग। ठीक है, हाँ, और उसके वो लिंक रहेगा आपके एएलएम के साथ। मतलब जब आपका एप्लीकेशन रहेगा तो उसकी लिंकिंग रहेगी एएलएम के साथ। एएलएम इज अ टूल, एप्लीकेशन लाइफ मैनेजमेंट। मैंने कल बताया था कि इट इज इन हायर वर्जन ऑफ क्यूसी, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेस्ट मैनेजमेंट टूल है। ठीक है, सो यू कैन जस्ट गो एक्सेस इट। वहां पे आप टेस्ट केस लिख सकते हैं, वहां पर आप डिफेक्ट रेज कर सकते हैं, वहां पे आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं। वो एक टूल आपका हो गया, तो आपको कोई कोई और टूल करने की जरूरत नहीं। कैन यू शेयर द स्टोर लिंक ऑन व्हाट्सएप? यस, आई विल शेयर द स्टोर लिंक ऑन व्हाट्सएप फॉर श्योर, प्रियंका। ठीक है, सो गाइज आई थिंक आई एम गुड ऑन ट्रैक। मैंने जितना सोचा था कि मैं हर हर दिन कवर करूंगी, उतना आई एम बीन एबल टू कवर इट। सो आई एम ग्लैड, and I hope you guys are understanding it, and let me know if you want to have anything extra, तो आप मुझे अभी बोल सकते हैं, तो मैं वो include कर लूंगी। और we can, or anything that you want me to repeat again, or anything that you want me to slow down। मैम बहुत फटाफट हो रहा है। then also your suggestions and your feedbacks are welcomed, people, okay? This is the session for you and not for me, so it will be as per your feedback and your suggestions. Okay, I'm there for 2 minutes more. Ask me any questions that you want to ask, and give me your any feedback that you want to. Okay, I'm just stopping the sharing. Okay. A request for details of agile model. Okay, we will see, Prasad, if we have time, we are going to include agile model. Agile अपने आप में ही एक बड़ा सा टॉपिक है। We will see if we can accommodate agile model. ठीक है,
All right, so we already have the agile in our QA expert course. इसमें हमारा agile है. ठीक है. मैम इसका सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? हाँ, इसका सर्टिफिकेट बिल्कुल मिलेगा. आप अपना रोज 1 आवर दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल मिलेगा इसका सर्टिफिकेट. आपको स्टोर से जाके परचेज करना पड़ेगा फॉर द प्राइस ऑफ 599. ठीक है. मैम ऑटोमेशन टेस्टिंग का सिलेबस क्या है? ओके, सो आई एम गोइंग टू पुट द सिलेबस टुडे ऑफ द ऑटोमेशन टेस्टिंग इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक. और प्लस पीपल आर आस्किंग कि मैम आपका क्यूए एक्सपर्ट कोर्स का सिलेबस क्या है, सो वो भी मैं डालूंगी. जिसमें मैंने जो प्लस 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 करके ऊपर टाइप किया है उसका डिटेल्स में हम डालेंगे. ठीक है. All right, so I think I have answered most of the questions. Otherwise, आपको इसके अलावा कभी बाद में भी कोई questions आता है, then you can of course come drop me a message. You already know my number, and then what else? What else? Just go learn, come up with questions. Questions पूछिए, answers दीजिए मुझे जब मैं कुछ questions पूछती हूँ तो. Ma'am, yeah, who is saying that? Ma'am, you speak very well English. How can I learn? Okay, thank you for the compliment. But I have been, I have been learning and speaking it from last many years. That's why probably, but it is not, it is not impossible kind of a thing. We just to update, guys. We also have our communication classes going on, and the fees for that is. The fees for that is 2499 for the communication, wherein we encourage, we teach you how to speak, how to communicate with your professional people, how to communicate with your corporate people, and so on. So मतलब वो अपने आप में एक अलग syllabus ही है. That is called as an English enhancement course. English तो सबको ही आता है. I know everybody knows English, but that's an enhancement course which will enhance your English even more better. So yeah, so thank you for the compliment, and this is the fees for the English communication in case you are interested. The classes are going on at 5 p.m. every day. Okay. Yeah, thank you, Rushikesh. Thank you very much. Okay. So see you guys tomorrow at same time, 7 p.m. Don't forget to log in sharp, and and then if any of your friends want to attend, ask them to attend it from tomorrow also. It's not a lot of loss for them as well. They will at least learn something. All right, then have a nice rest of the evening, everybody. Good night.